Pranam to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss MCQ on medical attendance rules, Central Services Medical Attendance Rules 1944. It is part 1. So, in subsequent time, within short while, I will bring another 2 videos related to the CSMA rules 1944. It is the very important part. So now in a short while, section officer exam of NVS will be conducted and other departmental examinations of NVS will be conducted. And also this part would be useful for incoming principal exams like Delhi Board, UPSC principal exam and EMRS, Ekalavya Model Residential School exam, and I think that these 2 exams will be conducted in a month of June and July, and also I think that in NVS and KVS principal notification will be coming within a short period of time. So my friends, please you prepare it. It means before facing the war, you prepare it properly, then definitely you would be in the competition level. So this part is very useful one, and also in a short while Odisha Adarsh Vidyalaya principal exam will be conducted, and also for candidates this part is very useful. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru, and also in description box my Telegram channel link is there. Please click on it and join my channel so that you can avail all the videos. So now I am going to start. It is the first part, MCQ on CSMA rules 1944. So you see the question number 1. Central Services Medical Attendance rules apply to CSMA rules 1944 apply to government servants deputation abroad. तो उनके लिए एक्चुअली CSMA रूल्स अप्लीकेबल नहीं है. रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल. रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. यदि रेलवे एम्प्लॉइज डेपुटेशन में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ये करेक्ट है, उनके लिए अप्लीकेबल है. डिफेंस सर्विसेज पर्सनल CSMA रूल्स 1944 अप्लीकेबल नहीं है. अभी आंसर है बीट सी, उसका आगे में भी एक्सप्लेनेशन है. यू सी द एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. नेक्स्ट पेज आई विल डिस्कस. इट मीन्स CSMA रूल्स 1944 इट इज applicable for whom, but here answer is bit C. So you see CSMA rules apply to all government servants when they are on duty leave, including leave preparatory to retirement and terminal leave, or foreign service in India, or when under suspension. ये सबके लिए CSMA rules 1944 applicable है. ओके चाहे ड्यूटी में है, चाहे लीव में है, चाहे लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में है, चाहे फॉरेन सर्विस इन इंडिया, सपोज वर्किंग इन डेपुटेशन, वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, एनी कॉर्पोरेट बॉडीज. ओके, और व्हेन द एम्प्लॉई इज अंडर सस्पेंशन ऑल्सो CSMA रूल्स अप्लीकेबल टू हिम. रेलवे एम्प्लॉइज एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. यदि रेलवे एम्प्लॉइज एंड एनी अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स इफ दे आर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज डेपुटेशन, उनके लिए भी एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो गवर्नमेंट पेंशनर्स है रिटायरमेंट के बाद उनको तो पेंशन मिल रहा है, यदि फिर वो री एम्प्लॉयड उनका होता है, फिर उनका री एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके लिए भी CSMA रूल्स अप्लीकेबल है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अप्लीकेबल. प्रोबेशनर्स ऑल्सो अप्लीकेबल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. डेफिनेटली यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. ओके, चलो अब आगे में चलते हैं. दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू, ये रूल किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है?
you can get question also related to this. Defense services personnel, right, ये रूल applicable नहीं है. Deputation abroad और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये तीनों के लिए CSMA रूल्स 1944 applicable नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है. So just you remember for whom it is applicable and for whom it is not applicable. You can get question related to this. Now you see question number 2. Central services medical attendance rules do not apply to. अभी तो हम देख चुके हैं. देखेंगे ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट और ऑन टर्मिनल लीव, ये तो उनके लिए एप्लीकेबल है. डू नॉट अप्लाई टू, एक्चुअली जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट है, टर्मिनल लीव है, उनके लिए CSMA रूल्स एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट सर्वेंट्स कवर्ड अंडर CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स एप्लीकेबल है, ओके, फॉर दोज CGHS एप्लीकेबल, then for these government servants actually CSMA rules 1944 is not applicable. ओके, यही आंसर होगा. आगे में देखेंगे गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी हम डिस्कस किया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि गवर्नमेंट पेंशनर्स अगेन री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट मीन्स उनके लिए CSMA रूल्स 1944 एप्लीकेबल होगा. प्रोबेशनर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पर जो आंसर है बीट बी है. बीट बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे आर एंटाइटल्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, then they are not eligible for CSMA rules 1944. सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो आंसर बीट बी. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When adequate number of government doctors or their services are not applicable in various system of medicine within a radius of dash kilometers, then private registered medical practitioner would be appointed as AMA ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट. ये जो क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्टिकुलर कितना रेडियस के अंदर यदि गवर्नमेंट डॉक्टर्स, इफ द गवर्नमेंट डॉक्टर्स और देयर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन चाहे हमारा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स और आप ले जाइए आयुष, ओके, जो आयुष डॉक्टर्स है, यदि वो कितना रेडियस के अंदर यदि वो बेसिकली government doctors or their services are not available in various system of medicine, then definitely private registered medical practitioners would be appointed as authorized medical attendant. तो ये जो आंसर है 5 किलोमीटर्स, जो आंसर है बीट डी है. यदि विद इन 5 किलोमीटर रेडियस if government doctors or their services are not available in various system of medicine, then private registered medical practitioner would be appointed as AMA authorized medical attendant. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको फोकस करना है कि विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, राइट, विद इन 5 किलोमीटर रेडियस if the government doctors or their services are not available, clear, then private medical practitioners would be appointed as AMA. Answer is bit D. चलो राइट, अभी क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू. AMA को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? हाउ टू डिटरमाइन ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट. ओके, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स इल, देन हाउ कैन AMA ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट वुड बी डिटेक्टेड फॉर हिम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर जो आंसर दिया गया हिज हेडक्वार्टर्स, ये आंसर नहीं है. द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल, इट इज करेक्ट वन. जिस प्लेस में गवर्नमेंट सर्वेंट इल होता है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सफरिंग इन एनी टाइप ऑफ इलनेस, ओके, वो चाहे वो परमानेंट रेसिडेंस हो उसी प्लेस में कि वो टेम्पररी रेसिडेंस हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस. आप रेसिडेंस के ऊपर ध्यान मत दो. जिस प्लेस में वो इल हो रहा है उसी प्लेस में उसका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट को अपॉइंट किया जाएगा. तो बेसिकली आंसर है द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल. अनदर 2 ऑप्शंस आर देयर. द प्लेस ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंस, ये नहीं है, नॉन ऑफ द अबव. तो आंसर इज बीट बी. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट यू रिमेंबर हियर, एक्चुअली यू रिमेंबर 2 थिंग्स. the government servant, the place at which he falls ill, the place at which the government servant falls ill
और एक मजा बात है, आपको याद रखना है कि हिज पे लेवल, अकॉर्डिंग टू हिज पे लेवल ऑल्सो in both the condition, the place at which he falls ill and the pay level of the concerned employee. ओके ये दोनों कंडीशंस को लेना है, ओके, टू अपॉइंट द AMA, राइट। और जो प्लेस में इल हो रहा है ना द गवर्नमेंट सर्वेंट, हम नहीं देखेंगे चाहे उसका परमानेंट रेसिडेंस हो कि चाहे वो टेम्पोररी रेसिडेंस हो, कि वो टेम्पोररी पीरियड के लिए वो टूर फूर में गया है और वो इल हो जाता है, उस कंडीशन में जिस प्लेस में वो इल होगा, इन विच प्लेस एक्चुअली ही फॉल्स इल, okay, in which place actually he suffer in any type of supposed disease, at that place only authorized medical attendant would be appointed, and also his pay level is also considered, right? Answer is bit B, बहुत important है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया, देखिए ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट जो है रूल 2A में है, जो CSMA रूल्स 1944 रूल 2A, आपको ये भी रिमेंबर करना है, जस्ट यू रिमेंबर रूल 2A, ओके। ऑल्सो इन प्रीवियस एग्जाम्स ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, इट मीन्स आया था ऐसा क्वेश्चन रूल के ऊपर, रूल 2A, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट्स: medical officers of the central government, medical officers of the state or union territories governments, private registered medical practitioners when adequate number of government doctors or their services are not available in various system of medicine within a radius of 5 kilometers or because of the remoteness of the area. और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द AMA, अभी मैं डिस्कस किया, द AMA ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट is determined with reference to the place at which he falls ill and his pay. ये दोनों चीज को आपको याद रखना है, the place at which he falls ill, another one his pay level, okay, in which place actually he falls ill and his pay level is considered, okay, to appoint the authorized medical attendant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, of whether it is a permanent or temporary residence or a place of casual stay. जिस प्लेस में एक्चुअली द गवर्नमेंट सर्वेंट सफर इन इलनेस, चाहे उसका वहां पर परमानेंट रेसिडेंस हो कि टेम्पोररी हो, और ये प्लेस ऑफ कैजुअल स्टे, कोई कैजुअल पीरियड के लिए वो उस प्लेस में गया था और सफर इन इलनेस, तो आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस, ओके, वहां पर हम नहीं देखेंगे, ओनली दो चीज को देखेंगे, बेसिकली इन व्हिच प्लेस द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स इल एंड हिज पे लेवल आल्सो शुड बी कंसीडर्ड, it means to appoint the AMA, authorized medical attendant. Next one, if no AMA is appointed, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, no AMA is appointed for a suburban area, treatment can be had from AMA in a government hospital in the adjoining city. यदि authorized medical attendant ऐसा कोई नहीं मिला, सपोज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस में गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कि उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं मिला, तब वो क्या है ना, एडजॉइनिंग सिटी में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम डिस्कस किया था, अनऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इज अपॉइंटेड अंडर रूल डैश ऑफ CSMA रूल्स, अभी ऊपर में देखा हम, इट इज रूल 2A, आंसर इज बिट A। जो CSMA रूल्स 1944, एक्चुअली रूल 2A सजेस्ट दैट, ओके, हाउ टू अपॉइंट द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल 2A ऑफ CSMA रूल्स 1944 बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, आंसर इज बिट A। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स ऑल्सो क्वेश्चन इट मीन्स वाज कमिंग रिलेटेड टू दिस। ए मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट may receive medical attendance and treatment in a recognized women's hospital up to the age of, जैसे recognized women's hospital according to the Ministry of Health and Family Welfare, तो उसमें एक मेल चाइल्ड का ट्रीटमेंट हो सकता है, मगर कितना एज तक, एक क्वेश्चन पूछा है। ए मेल चाइल्ड ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल, बट अप टू हाउ मच एज। सो यहाँ पर जो है 1 ईयर ऑप्शंस, 1 ईयर नहीं है, 6 ईयर्स एक्चुअली इट इज करेक्ट है, 3 ईयर्स नहीं है कि 10 ईयर्स है, नहीं है। ए मेल चाइल्ड अप टू 6 ईयर्स कैन गेट ट्रीटमेंट
इन ए रिकॉग्नाइज्ड वोमेन्स हॉस्पिटल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मेल चाइल्ड अप टू 6 years कैन गेट ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वोमेन्स हॉस्पिटल। आंसर इज बीट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इजी है। AMA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। आंसर इज बीट सी। ओके, AMA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। आंसर इज बीट सी। बहुत इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इन respect of one single and continuous spell of illness, an AMA may provide medical attendance at his consulting room for a maximum period of dash days. Continuous spell of illness, okay, continuous one single, यहाँ पर इसको importance देना है, one single and continuous spell of illness. An AMA may provide medical attendance at his consulting room, okay, for a maximum period of dash days. It is options given 10 days, 20 days, 5 days, 15 days. Actually answer is 10 days. Okay, in his consulting room, authorized medical attendant can treat the patient who suffer in a single and continuous spell of illness. So in his consulting room, the AMA can treat for 10 days, and within 10 days 4 consultations, you remember. Okay, within 10 days 4 consultations and 10 injections also, and maximum 15 injections can be given by the AMA. तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको याद रखना है कि बेसिकली फर्स्ट वन है कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, ओके, बेसिकली ट्रीट द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट in his consulting room for 10 days, and within 10 days 4 times consultations, and another one maximum 15 injections can be injected. Normally 10 injections and it can be extended up to maximum 15 injections. So 3 चीज़ आप यहाँ पर आपको याद रखना है। तो आंसर इज बीट ए, राइट। 3 चीज़ में बताया। Consulting room, in his consulting room basically AMA treat the government servant for a single and continuous spell of illness for 10 days, and within 10 days 4 consultations. The concerned government servant can consult with AMA for 4 times, maximum 4 times, and within this also normally 10 injections can be injected, or it can be extended up to 15 injections, maximum 15 injections can be injected, right. यहाँ पर जो आंसर है बीट ए है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल एंड कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ इलनेस ऑन AMA अंडर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष में प्रोवाइड मेडिकल अटेंडेंस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। ये जो है यहाँ पर 40 डेज आयुष जो डॉक्टर है उसका कंसल्टिंग रूम में जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कंसल्ट कर सकता है 40 डेज, ओके, फॉर 40 डेज, एंड विद इन 40 डेज ऑल्सो अगेन 4 कंसल्टेशंस, 10 days गैप फॉर ईच कंसल्टेशन, 10 days गैप, ओके। तो फॉर आयुष यहाँ पर रिमेंबर करना है, ओके। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्यो एंड नेचुरोपैथिक, ओके। ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है, द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन कंसल्ट विद द आयुष डॉक्टर इन हिज कंसल्टिंग रूम फॉर 40 days, and within 40 days also he can consult with basically 4 times he can consult with the basically authorized medical attendant related to the ayush, right. तो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है। सेम क्वेश्चन पूछा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सिंगल एंड कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ इलनेस एन AMA अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रोवाइड मेडिकल अटेंडेंस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 days, एंड ये जो 4 कंसल्टेशन है 10 days गैप आपको याद रखना है, ओके। फॉर ईच कंसल्टेशन 10 days गैप इज देयर। तो यहाँ पर भी 3 चीज़ आ गया, ओके। 40 days, विद इन 40 days 4 कंसल्टेशंस, एंड फॉर ईच कंसल्टेशन 10 days गैप इज देयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, number of consultations with AMA allowed in respect of one spell of illness is maximum dash days। number of consultations के ऊपर पूछा है। तो मैं बताया था अभी बेसिकली
a single spell of illness, the concerned government employee can consult authorized medical attendant in his consulting room for 10 days, and within 10 days 4 consultations. Okay, within 10 days 4 consultations. Answer is bit D. Similarly, if authorized medical attendant is Ayush doctor and in his consulting room, okay, if the patient is treated, then duration is 40 days, and again within 40 days 4 consultations and 10 days gap, right? तो यहाँ पर भी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बिट डी. नंबर ऑफ कंसल्टेशंस इट इज 4, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 11. Final claims of reimbursement of medical expenses of central government servants in respect of a particular spell of illness should ordinarily preferred within dash months from the date of completion of treatment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Actually, many exams actually this question was asked. So ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रीटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट विदिन हाउ मेनी मंथ्स the medical bills must be submitted in office for reimbursement. ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, जिस डेट में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसी से विदिन हाउ मेनी मंथ्स के अंदर मेडिकल बिल्स को ऑफिस में सबमिट करना है रीइंबर्समेंट के लिए. तो ये यहाँ पर जो आंसर है वो 6 मंथ्स है, विदिन 6 मंथ्स. क्लियर? सो विदिन 6 मंथ्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट the medical bills should be submitted for reimbursement. यदि 6 मंथ से डिले हो जाता है तो 6 मंथ्स के बाद वो उसको कंडोनेशन किया जाएगा, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो इसको कंडोन कर सकते हैं और विथ रीजन आपको देना है. तो आपको याद रखना है कि after completion of the treatment within 6 months the bill must be submitted. If it is not submitted and if it is delayed, then it is condoned by the head of the department, right? तो आपको याद रखना है head of the department HOD उसको कंडोन कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट, और जॉइंट सेक्रेटरीज आप ले जाओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट. तो इसके आगे में क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर जो याद रखना है बिल सबमिट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट विद इन 6 मंथ्स. आंसर इज बिट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 12. मेडिकल एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट कैन बी ड्रन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन पेशेंट ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल एडवांस के ऊपर क्वेश्चन है. तो इनरेस्पेक्टिव ऑफ मेजर और माइनर डिजीज, आपको ये नहीं देखना है कि चाहे मेजर डिजीज हो कि चाहे माइनर डिजीज हो, उसमें यदि इंडोर ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो एडवांस मिलेगा. ओके, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू द मेजर और माइनर डिजीज. इफ द पेशेंट इज ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल देन एडवांस शुड बी गिवन. नेक्स्ट वन, अप टू 90, ये करेक्ट है. अप टू 90% ऑफ द अप्रूव्ड CGHS पैकेज रेट्स. जो ट्रीटमेंट होगा बेसिकली जो ट्रीटेड डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, जो पेशेंट को, जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहा है, एक्चुअली वो इन्फॉर्म करेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना है. ठीक है, वो एक्चुअली एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट वो भेजेंगे ऑफिस को कि एक्चुअली ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी इन पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ये है, वो बताएंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा वो CGHS रेट में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो रेट है उसी हिसाब से होगा, और उसका 90% एक्चुअली एडवांस मिलेगा. जब ट्रीटेड फिजिशियन सबमिट द रिसिप्ट रिलेटेड टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर and it is prepared according to the CGHS package rates, then the office can release 90% of the estimated cost as advance. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है. ये जो बीट सी है अभी मैं बताया, ऑन फर्निशिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग फिजिशियन ऑफ ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल. एक्चुअली जो ट्रीटिंग फिजिशियन ऑफ ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है वो एक्चुअली एक सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन करेंगे कि इतना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, राइट. बेसिकली द सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू बाय द ट्रीटेड फिजिशियन ऑफ ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, and in this certificate they have mentioned that actually it is the estimated cost.
तब एक्चुअली उसका 90% एडवांस मिल दिया जाएगा। और ये जो प्रिपेयर होगा ना सर्टिफिकेट, वो एक्चुअली किस रेट में होगा, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो CGHS रेट्स में होगा। और यहाँ पर कोई देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और देयर इज नो डिस्पैरिटी रिलेटेड टू द मेजर और माइनर डिजीजेस। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट डी है, ऑल ऑफ द अबव है। ओके, आंसर इज बीट डी। तो आपको ये फर्स्ट दो ABC पॉइंट से आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। 90% एडवांस मिलेगा, और जो ट्रीटेड फिजिशियन है वो एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट में एक्चुअली वो मेंशन करेगा कि इतना ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगा, उसका 90% एडवांस मिलेगा। ऐसा चाहे वो मेजर हो माइनर डिजीज हो, उसके लिए एडवांस मिलेगा। राइट, आंसर इज बीट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। मेडिकल एडवांस शैल बी रिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लिया कि इंडोर ट्रीटमेंट में एडवांस तो मिलेगा, तो ये एडवांस कितना दिन के अंदर मिलेगा? तो मेडिकल एडवांस शैल बी रिलीज विद इन डैश फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। जिस डेट में एक्चुअली ऑफिस रिक्वेस्ट एक्चुअली रिसीव करेगा, उसका 10 डेज के अंदर, उसका 10 डेज के अंदर द एडवांस मस्ट बी रिलीज्ड। मेडिकल एडवांस शैल बी रिलीज्ड विद इन 10 डेज, राइट, विद इन 10 डेज। ओके, बट यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द, जो 10 डेज कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, हाउ टू कैलकुलेट 10 डेज? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। ओके, व्हेन द ऑफिस एक्चुअली रिसीव द रिसिप्ट, okay, then from this date actually within 10 days the office release the advance, right? तो यहां पर जो आंसर है बीट बी है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 14। इफ एडवांस इज पेड डायरेक्ट टू द हॉस्पिटल, द फाइनल सबमिटेड बिल शुड बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉई विद इन डैश मंथ ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है, इनपेशेंट ट्रीटमेंट में, इंडोर ट्रीटमेंट, जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो फिजिशियन तो सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट में मेंशन कर दिया कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, तो उसका 90% एडवांस दिया जाएगा। कभी कभी क्या है, ऑफिस डायरेक्टली एडवांस हॉस्पिटल को दे देगा। यदि हॉस्पिटल को एडवांस दिया जाता है, तब जब जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब डिस्चार्ज किया जाएगा, जिस डेट में डिस्चार्ज किया जाएगा, उसका 1 मंथ के अंदर, क्लियर, उसका 1 मंथ के अंदर फाइनल बिल को एक्चुअली सबमिट करना है। तो यदि एडवांस डायरेक्टली ऑफिस से हॉस्पिटल को जाएगा, इफ डायरेक्टली एडवांस गिवन बाय द हॉस्पिटल, एडवांस गिवन बाय द ऑफिस टू द हॉस्पिटल, then on which date actually the concerned government employee is released from the hospital, from this date within 1 month the final bill must be submitted। ठीक है, तो यहां पर जो है आंसर बीट 1 हो गया, विदिन 1 मंथ। और अच्छा, 1 मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जिस डेट में द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटल से रिलीज किया जाएगा, उसका 1 मंथ के अंदर फाइनल बिल को सबमिट किया जाएगा। If advance is paid direct to the hospital, the final submitted bill should be submitted by the employee within 1 month of the discharge from hospital। और एक बात है, जो सपोज एडवांस दे दिया गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फिजिशियन दिया था, जो ट्रीटेड फिजिशियन दिया था, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया था, तो उसका 90% एडवांस दे दिया गया। सपोज एक्सपेंडिचर जितना एडवांस हॉस्पिटल को मिला, राइट, सपोज उससे कम खर्च हुआ, एक्चुअल रियल एक्सपेंडिचर इज लेस देन द एडवांस, तो वो फिर वहां पर जो हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो फिर हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेगा को जितना बैलेंस है वो रिटर्न कर दे। राइट, तो इसको भी याद रखना है। क्लियर, चलो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर यहां पर याद रखना है, यदि एडवांस डायरेक्टली ऑफिस से चला जाता है हॉस्पिटल को, जिस डेट में पेशेंट को रिलीज किया जाएगा, उसी से 1 मंथ के अंदर फाइनल बिल को सबमिट किया जाएगा ऑफिस में। ओके, इट मस्ट बी सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द ऑफिस। राइट, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, अभी आ गया आउटडोर ट्रीटमेंट। अभी तो इंडोर ट्रीटमेंट में हो गया। आउटडोर ट्रीटमेंट, एडवांस गिवन टू द इल ट्रीटेड गवर्नमेंट सर्वेंट इज 90% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन इज मोर देन। सिमिलरली जो आउटडोर ट्रीटमेंट है, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है। आउटडोर ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होगा, ओके, चाहे वो रेसिडेंस में ट्रीटमेंट हो सकता है, और ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का जो कंसल्टिंग रूम है वहां पर ट्रीटमेंट होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटडोर ट्रीटमेंट में भी
90% एडवांस मिलेगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का 90% एडवांस मिलेगा। मगर यहां पर एक शर्त है, यहां पर जो है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी मोर देन 10,000। यदि एक्सपेंडिचर मोर देन ₹10,000 होगा, इफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन ₹10,000 इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, तब 90% एडवांस मिलेगा। तो वही है, यहां पर आंसर आपको मिल गया। यहां पर जो आंसर है इट इज ₹10,000, इट इज मोर देन ₹10,000, राइट। ये आंसर बी डी है। तो आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इट मस्ट बी मोर देन ₹10,000, तब 90% एडवांस मिलेगा। यदि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लेस देन ₹10,000 है, वहां पर एडवांस नहीं दिया जाएगा। तो वही है, फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट advance given to the ill-treated government servant is 90% of the total estimated expenditure if the total expenditure including test or investigation is more than ₹10,000. It is very important one. So many times also this question already asked in previous exams. Right? अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16. In case of serious illness or accident where official is unable to apply, advance can be sanctioned on the application of. यदि कोई सीरियस इलनेस कंडीशन में, एट द टाइम ऑफ सीरियस इलनेस कंडीशन और एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, व्हेन द ऑफिसर इज अनेबल टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर एडवांस, देन ऑन बिहाफ ऑफ हुम एक्चुअली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर एडवांस। यदि सीरियस कभी एक्सीडेंट हो जाता है कि सीवियर इलनेस कंडीशन में ऑफिशियल एडवांस के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो उसकी तरफ से कौन एप्लीकेशन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है आंसर बी डी है, वाई फॉर लीगल हेयर। दोनों कभी कभी अलग अलग देता है, तो अलग अलग देगा तो बोथ लेना है, यहां पर दे दिया है वाई फॉर लीगल हेयर। ओके, तो आंसर इज बिट डी। तो ये दोनों को रिमेंबर करना है। कभी कभी क्या है, ओनली वाइफ ऑप्शन देता है, वाइफ देता है, लीगल हेयर देता है, तो दोनों को लेना है, ठीक है। तो यहां पर तो ऑप्शन दिया है वाई फॉर लीगल हेयर, तो ये याद रखना है। सीरियस इलनेस कंडीशन में और एक्सीडेंट टाइम में, if the official is unable to submit the application for advance, then on behalf of him, wife or legal heir can submit the application for advance. Answer is bit D. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैं बताया था, पावर टू कंडोन डिले इन सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम्स हैज बीन डेलीगेटेड टू। एक्चुअली जो रूल है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट within 6 months actually bill should be submitted for reimbursement. ओके, जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है जिस डेट में, उससे 6 मंथ के अंदर बिल को सबमिट करना है रीइंबर्समेंट के लिए। यदि 6 मंथ्स के अंदर सबमिट नहीं होगा, डिले हो जाएगा, सो उसको कौन कंडोन करेगा? ओके, विथ कोजेंट रीजंस, विथ ऑथेंटिक रीजंस, कौन इसको कंडोन करेगा? सपोज 6 मंथ्स के बाद जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसका 6 मंथ्स के अंदर वो बिल सबमिट नहीं कर पाया, थोड़ा डिले हो गया, 6 मंथ से ऊपर हो गया, तब वो कौन सा ऐसा अथॉरिटी है उसको कंडोन कर सकते हैं? मैं अभी बताया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकते हैं, बेसिकली आपको याद रखना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज कर सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर है बी डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर याद रखना है, नॉर्मली बिल्स को 6 मंथ्स के अंदर सबमिट करना है। यदि वो डिले हो जाता है, इफ इट इज डिलेड, देन इट मस्ट बी कंडोन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जॉइंट सेक्रेटरीज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। मगर और एक था, यदि डायरेक्टली ऑफिस गिव एडवांस टू द हॉस्पिटल एंड इट मीन्स इन द हॉस्पिटल एक्चुअली ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन and 90% of the estimated expenditure basically advance given by the office to the hospital directly, then it means this date may, on which date the patient is released, then from this date within 1 month the final bill must be submitted. वो याद रखना है। मगर यहाँ पर नॉर्मली 6 मंथ्स के अंदर बिल को सबमिट करना है, और थोड़ा डिले हो जाता है तो ये सब अथॉरिटीज है उसको कंडोन कर सकते हैं विथ ऑथेंटिक और कजेंट रीजंस। आंसर इज बी डी। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है मेंटल डिजीज के ऊपर है। फॉर मेंटल डिजीजेस, सपोज द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज सफरिंग इन मेंटल डिजीज, तो पेशेंट में बी अलाउड टू रिसीव इंडोर ट्रीटमेंट। इंडोर ट्रीटमेंट मीन्स बेसिकली ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, recognized or government hospital, for a maximum period of dash
तो यहां पर जो है आंसर है 3 years, राइट। इफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई, राइट, सफर इन मेंटल डिजीज, देन he may be allowed to receive treatment in hospital for a maximum period of 3 years. Answer is bit C, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड टू मेंटल डिजीज था। चलो क्वेश्चन नंबर 19, रीइंबर्समेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन चार्जेस। जैसे अभी जो कोविड-19 में सपोज आप बाहर से वैक्सीन लिया, अभी तो गवर्नमेंट ऐसे फ्री वैक्सीन दे रहा है, नाउ फ्री vaccination program is going on. Suppose you are having no time to go to the concerned government hospital for vaccine, and then you want to purchase it from outside, then COVID vaccine can be reimbursed. But here actually condition is reimbursement cannot be claimed for a cost of vaccination charges for hepatitis B. Hepatitis B के लिए यदि वैक्सीन लेते हो तो वो reimburse होगा, मलेरिया के लिए नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा के लिए होगा, कोविड वैक्सीन होगा। तो आपको याद रखना है, जो मलेरिया डिजीज है, जो उसका वैक्सीनेशन लेने से एक्चुअली वो रिइंबर्स नहीं होगा, मगर अदर बेसिकली केसेस वैक्सीनेशन, यू हैव टेकन वैक्सीन, सपोज द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज टेकन वैक्सीनेशन फॉर हेपाटाइटिस बी की, इन्फ्लुएंजा की, कोविड वैक्सीन, देन इट कैन बी रिइंबर्स्ड। तो यहाँ पर जो आंसर है कैन नॉट बी क्लेम्ड, तो यहाँ पर जो आंसर है बिट बी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये रिलेटेड है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस इज क्लेम्ड फॉर एम्प्लॉई और ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर द पेशेंट फॉल्स इल एंड द हॉस्पिटल इज मोर देन डैश किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर याद रखना है, जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली इज मोर देन डैश किलोमीटर्स, इट इज मोर देन 8 किलोमीटर्स और मोर देन 5 माइल्स, ये भी याद रखना है, और मोर देन 5 माइल्स, राइट। तो इसको याद रखना है, यदि जो डिस्टेंस होगा, द प्लेस एट व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स इल एंड हॉस्पिटल, इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 8 किलोमीटर्स और 5 माइल्स, देन द ट्रैवलिंग अलाउंस, okay, bear by the concerned employee can be reimbursed, right? यदि less than 8 kilometers है, place at which the government servant falls ill and the hospital, if it is less than 8 kilometers or less than 5 miles, then traveling allowance cannot be reimbursed, right? तो इसको भी क्लियरली बताया, तो आंसर यहाँ पर जो है बिट डी है, और कभी कभी 5 माइल्स आता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है रिलेटेड एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस चार्जेस आर अलाउड टू बी रीइंबर्स्ड। आप देख लीजिए, इट शुड बी सर्टिफाइड दैट द कन्वेयंस ऑफ द पेशेंट बाय एनी अदर मीन्स वुड डेफिनेटली एंडेंजर हिज और हर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज और कोई सपोज कन्वेयंस में यदि पेशेंट को लिया जाएगा हॉस्पिटल को, वो एंडेंजर होता है कि सपोज उसका लाइफ के लिए खतरा होता है, तो एम्बुलेंस लेना जरूरी है, करेक्ट है। द एम्बुलेंस शुड बिलोंग टू गवर्नमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एम्बुलेंस शुड बिलोंग टू गवर्नमेंट और लोकल फंड और ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस सोसाइटी। इसको याद रखना है, ये भी करेक्ट है। ओके, जो एम्बुलेंस होगा इट मस्ट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और लोकल फंड और ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द एम्बुलेंस शुड बी यूज्ड विद इन द सेम सिटी, ये भी करेक्ट है। द एम्बुलेंस शुड बी यूज्ड विद इन द सेम सिटी, ओके, ये करेक्ट है। द एम्बुलेंस इज यूज्ड टू कन्वे ए पेशेंट टू ए प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट और फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर फॉर पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, कि टू कन्वे पेशेंट टू ए प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है आंसर है बिट ई है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देख लीजिए, सपोज different questions also coming related to the ambulance charges, मगर ये if you remember first 4 statements A, B, C and D, then definitely any type of question is coming related to the ambulance, then easily you can do it. All A, B, C and D, all 4 are correct one, right? चलो question number 22, a government employee may obtain consultation from a specialist। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब
जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है। मगर यहां पर आपको याद रखना है बेसिकली जब ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट रिफर करता है, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट रिफर द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू कंसल्ट विद द स्पेशलिस्ट, देन वो केस में स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट होगा, मगर बिना परमिशन लिया जाएगा। ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का परमिशन लेना जरूरी है। और उसके बाद और भी कंडीशन है, सपोज इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन सिवियर इलनेस कंडीशन, देन ऑल्सो द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट कैन कॉल द स्पेशलिस्ट, ओके, टू सी द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन हिज रेसिडेंस। तो ये दो चीज याद रखना है, विदाउट परमिशन ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट द गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन नॉट कंसल्ट विथ स्पेशलिस्ट। ये क्वेश्चन आता है, तो रिफरेंस ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इज नेसेसरी। ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का रिफरेंस जरूरी है। सेकंड में यदि सिवियर इलनेस कंडीशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट कॉल भी कर सकता है स्पेशलिस्ट को, वो आकर घर में भी जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रेसिडेंस में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इफ ही बिलोंग्स टू ग्रुप ए, इफ ही सो डिजायर्स, इफ द ट्रीटिंग ए में, ये आंसर करेक्ट है, बिट सी जो है आंसर करेक्ट है। इफ द ट्रीटिंग ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इज द ओपिनियन दैट द पेशेंट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंडेंस फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट, यही अभी मैं बताया। और जो फोर्थ ऑप्शन है, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट गिवन बाय ए में, और ये नहीं है, आंसर इज बिट सी, राइट। तो उसको भी अच्छे से क्लैरिफाई किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलो यहां पर थोड़ा इसको देख लीजिए, रिफरेंस टू स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर, इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट सो रिक्वायर्स, यदि ऐसा कंडीशन है जहां पर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट चाहता है कि उस यहां पर स्पेशलिस्ट का जरूरत है, तो वहां पर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट एक्चुअली रिफर द पेशेंट टू कंसल्ट विथ स्पेशलिस्ट। और ये भी है, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑल्सो कॉल द स्पेशलिस्ट टू चेक द पेशेंट इन हिज रेसिडेंस। तो भाई सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर, और summon the specialist or medical officer to attend on his patient who is too ill to travel। मगर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का रिफरेंस बहुत जरूरी है, राइट। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर स्पेशल नर्स इज अलाउड एट द रेट ऑफ स्पेशल नर्स ओनली इन इंडोर ट्रीटमेंट इफ द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन इन द हॉस्पिटल। बेसिकली रेसिडेंस में ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर स्पेशल नर्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओनली यदि ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन सिवियर इलनेस कंडीशन और वहां पर स्पेशल नर्स का जरूरत है, तब स्पेशल नर्स का अपॉइंट किया जाएगा और उसके लिए भी जो भी खर्च होगा वो रिइंबर्स होगा। मगर रेसिडेंस में, यदि सिवियर इलनेस कंडीशन में रेसिडेंस में एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है और वहां पर एक्चुअली स्पेशल नर्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओनली आपको याद रखना है इंडोर ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल स्पेशल नर्स का जरूरत है, वहां पर जो स्पेशल नर्स को जो पेमेंट किया जाएगा वो रिइंबर्स होगा। और आपको भी याद रखना है कि पे लेवल के हिसाब से वहां पर जो स्पेशल नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, पे लेवल, बेसिक पे लेवल के हिसाब से, क्योंकि वहां पर जो हॉस्पिटल में अकोमोडेशन मिलता है वो पे लेवल बहुत जरूरी है। जब भी आपको याद रखना है, जब भी आप CSMA रूल्स 1944 में आप जब रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जो मेडिकल इंचार्ज है, आपका पे लेवल बताना है कि पे लेवल के हिसाब से आपको वहां पर अकोमोडेशन मिलेगा, राइट। तो पे लेवल बहुत जरूरी है और कोई नहीं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पे लेवल बहुत जरूरी है। पे इमीडिएटली आपको पे लेवल बताना है, आपको जो मेडिकल इंचार्ज है उसके हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिलेगा। और यहां पर जो स्पेशल नर्स का बात है, स्पेशल नर्स को एक्चुअली जो पेमेंट होता है 150 रुपीज पेमेंट होगा और जो ड्यूटी होगा 12 आवर्स पर 12 आवर्स। समझ में आ गया? बेसिकली इंडोर ट्रीटमेंट में, और बेसिकली जब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता है और स्पेशल नर्स का जरूरत है, वहां पर स्पेशल नर्स को अपॉइंट किया जाएगा और 12 आवर्स में, 12 आवर्स का ड्यूटी में 150 रुपीज पेमेंट किया जाएगा, वो रिम्बर्स होगा। तो यहां पर जो आंसर है बिट डी है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये जो आया और अटेंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि वही इंडोर ट्रीटमेंट ओनली, नॉट इट मीन्स ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन इन रेसिडेंस,
इफ ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन इन रेसिडेंस, यदि कोई आया और अटेंडेंट को अपॉइंट किया जाता है, वहां पर उनको जो पेमेंट होगा वो रिइंबर्स नहीं होगा, ओनली इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अच्छा, यहां पर कितना पेमेंट होगा? यहां पर जो पेमेंट होगा 75 रुपीज होगा आया और अटेंडेंट को। जो स्पेशल नर्स को 150 रुपीज हो रहा था 12 आवर्स में, और आया और अटेंडेंट को 75 रुपीज होगा वही पर 12 आवर्स, और ये रिइंबर्स होगा। उससे ज्यादा पे किया जाएगा तो रिइंबर्स नहीं होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो है बीट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 25, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट इज अलाउड इफ द एज ऑफ वोमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इज बिटवीन, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इज अलाउड इफ द एज ऑफ वोमेन, आपको याद रहे, इफ द एज ऑफ वोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रीटमेंट है वो IVF है, IVF ट्रीटमेंट के लिए, इन विट्रो IVF ट्रीटमेंट के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। क्या एज होगा? वो एक्चुअली 21 to 39 ईयर्स होगा। जो वोमेन का एज ग्रुप होगा 21 to 39 ईयर्स, और उनका जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट होगा और जो भी खर्च होगा वो रिइंबर्स होगा। आंसर इज बिट बी। तो रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इज अलाउड द एज ऑफ वोमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इज बिटवीन 21 to 39 ईयर्स। और जो साइकिल्स है, साइकिल से 3 साइकिल्स आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पर जो आंसर है बिट बी है। प्लीज माय फ्रेंड्स, ऑलरेडी हाफ ऑफ द क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड, अनदर 25 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस। प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, ठीक है। देन डेफिनेटली इन सब्सिक्वेंट टाइम, पोस्टरिंग टाइम, you will get notification for my upcoming videos. Then very short while, next week again I will bring 2 MCQ videos of related to the CSMA rules 1944. It's the first video है। तो और आगे मैं बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा, और आपको इतना मेहनत करना नहीं होगा, तो आप मेरा ही वीडियो देख लीजिए, वो सफिशिएंट, डेफिनेटली सफिशिएंट होगा आपको, और डेफिनेटली यू विल परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन। तो चलो अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, reimbursement of expenditure on in vitro fertilization is allowed for a maximum period of 3 phase cycles. ओके, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ट्रीटमेंट होगा, जो वोमेन, उसका एज ग्रुप अभी होता है 21 to 39 ईयर्स, इज अलाउड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 फेज साइकिल्स। तो आंसर इज बीट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 27, रीइंबर्समेंट इज अलाउड फॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेस। यहां पर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल अप्लायंसेस बेसिकली डिसेबल और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए है। रिइंबर्समेंट इज अलाउड फॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेस बीइंग हिप जॉइंट विथ पेल्विक बैंड, ये रिइंबर्स होगा। आर्टिफिशियल लिम्स होगा, नी केज होगा। तो इट मींस आंसर इज बिट डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सब के लिए रिइंबर्समेंट होगा। ओके, रिइंबर्समेंट इज अलाउड फॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेस बीइंग हिप जॉइंट विथ पेल्विक बैंड, आर्टिफिशियल लिम्स, नी केज, सबके लिए होगा। आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 28, फुल रिइंबर्समेंट इज नॉट अलाउड। इसमें देखिए, जो भी टूथ रिलेटेड ट्रीटमेंट है, किसमें फुल रिइंबर्समेंट नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि कंप्लीट डेंचर केस में, टूथ एक्सट्रैक्शन में 100% रिइंबर्समेंट होगा। यहां पर 100% रिइंबर्समेंट होगा। फिलिंग ऑफ टीथ, ये भी 100% रिइंबर्समेंट होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये भी 100% रिइंबर्समेंट होगा, जो भी खर्च होगा। मगर कंप्लीट डेंचर के लिए ओके, जो भी खर्च होगा पूरा वो रिइंबर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, यहां पर आपको याद रखना है, कंप्लीट डेंचर, फुल रिइंबर्समेंट इज नॉट अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, ओके, कंप्लीट डेंचर। अदर केस में 100% रिइंबर्समेंट होगा। ओके, 100% एक्सपेंडिचर को रिइंबर्स किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, अंडर CSMA रूल्स हॉस्पिटल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो हॉस्पिटल्स है उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? जो हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आंसर इज बिट सी। ओके, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो है, बेसिकली अदर हॉस्पिटल्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो रिकॉग्निशन दे सकता है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस ministry has responsibility to recognize the hospitals
and basically CSMA rules 1944, under this rule the government servants can get treatment. तो आंसर इज बिट सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में अवेल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर फॉलोइंग। यदि आउटसाइड इंडिया में ट्रीटमेंट होगा तो किस तरीके का डिजीज में एक्चुअली इट इज अलाउड फॉर ट्रीटमेंट बेसिकली इन अब्रोड। तो कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ल्यूकेमिया एंड नियोप्लास्टिक कंडीशन, ये केस में अब्रोड में ट्रीटमेंट होने के लिए अलाउ होगा। कॉम्प्लेक्स हायर रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी ये भी होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये भी होगा। तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, सभी केस में ठीक है अलाउ किया जाएगा अब्रोड में ट्रीटमेंट के लिए। स्टैंडिंग कमिटी एक बनेगा, जो स्टैंडिंग कमिटी का राय रहेगा और फाइनली ये सब केस में इसी डिजीज में अब्रोड में ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 31, reimbursement of medical claims of government servants who are admitted in the hospitals before retirement and discharge after their retirement should be made by। so before retirement हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और आफ्टर रिटायरमेंट उसका डिस्चार्ज हुआ, तो उसका जो मेडिकल बिल को कौन रीइंबर्स करेगा? हु रीइंबर्स द मेडिकल बिल okay of the concerned government employee who admitted in the hospital before retirement but discharged after retirement। रिटायरमेंट के पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, रिटायरमेंट के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तो उसका जो मेडिकल बिल को कौन रिइंबर्स करेगा? बेसिकली उसका खुद जो ऑफिस में काम कर रहा था, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और जिस मिनिस्ट्री में वो काम कर रहा था, वही उसका रिइंबर्स करेंगे। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया। तो आंसर इज बिट ई, देयर ओन ऑफिस, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न। ओके, बिफोर रिटायरमेंट वो एडमिट हो गया और आफ्टर रिटायरमेंट वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तो इस केस में उसका मेडिकल बिल को कैसे रिइंबर्स किया जाएगा? उसका ओन ऑफिस कर सकता है और डिपार्टमेंट कर सकता है और मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री पे वो काम कर रहा है वो कर सकता है। आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 32, हु अपॉइंट्स ए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एन एएमए। मैं अभी बताया था, इफ विद इन 5 किलोमीटर रेडियस if any government doctor or their services okay are not available for including Ayush doctors okay for any system of medicine, then तभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो एचओडी है डिपार्टमेंट का, वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है। यदि 5 किलोमीटर रेडियस में, विद इन 5 किलोमीटर रेडियस कोई ऐसा गवर्नमेंट डॉक्टर एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है, तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का हेड है, वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को एएमए ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के आकार में अपॉइंट कर सकता है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, आंसर इज बिट सी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ए मेडिकल ऑफिसर sends a government servant and his family to a private clinic or laboratory for bacteriological or pathological examination। कब मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट को सेंड करेगा प्राइवेट क्लिनिक को कि प्राइवेट लैब को फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए? यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है, इफ दिस फैसिलिटी सपोज इट इज नॉट अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, ओके, व्हेन इट इज बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, when it is essential owing to, जो आंसर है बिट सी है, आप देख लीजिए, when it is essential owing to non availability of such facility at a government hospital with the consent of the director of health services। आपको याद रखना है, यदि ये फैसिलिटी एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस कैन बी कंडक्टेड इन प्राइवेट क्लिनिक और लैब। ओके, मगर यहां पर याद रखना है, इट मीन्स नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो यहां पर दो चीज याद रखना है, क्वेश्चन भी अलग तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन उपलब्ध नहीं होगा, ओके, सपोज द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज नॉट अवेलेबल बेसिकली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, and then also if it is not available, then must take the consent of the director of health services, then bacteriological or pathological examination can be conducted in private clinic or private labs, right? Answer is bit C. चलो क्वेश्चन नंबर 34,
टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए री एम्प्लॉयड पेंशनर। हम जानते हैं कि जो री एम्प्लॉयड पेंशनर है, CSMA रूल्स 1944 उसके लिए भी लागू होगा री एम्प्लॉयड पेंशनर के लिए। तो टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए री एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है, री एम्प्लॉयड पेंशनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड, ये नहीं है। री एम्प्लॉयड पेंशनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944। और ये जो पे है, हाँ पे देखा जाएगा, पेंशन भी देखा जाएगा, बोथ बी एंड सी। ये जो आंसर होगा बी डी होगा। जब उसका ट्रीटमेंट होगा री एम्प्लॉयड पेंशनर का, तब उसका 2 चीज देखा जाएगा कि उसका पे क्या है और उसको कितना पेंशन मिल रहा है। वो दोनों को कंसीडर किया जाएगा उसको ट्रीटमेंट के लिए। जैसे नॉर्मली जो इन सर्विस है उनका बेसिक पे को देखा जाता है। बेसिकली इमीडिएटली व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट want to take treatment in a government hospital or recognized hospital, then immediately he must inform the medical officer in charge related to his basic pay। तो बेसिक पे के हिसाब से अकोमोडेशन मिलेगा, राइट? बेसिक पे के हिसाब से अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा हॉस्पिटल में। तो यहां पर जो क्वेश्चन है री एम्प्लॉयड पेंशनर के लिए, और उसका 2 चीज वो इन्फॉर्म करना है कि उसका पे लेवल क्या है और उसको कितना पेंशन मिल रहा है। तो दोनों को मिलाकर एक्चुअली उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी दिया जाएगा। तो आंसर इज बी डी, बोथ बी एंड सी। चलो क्वेश्चन नंबर 35, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज एनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज एंड देयर फैमिली मेंबर्स अंडर CSMA रूल्स 1944? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज? अच्छा, जो डायरेक्ट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रिकॉग्निशन दे सकता है कि वहां पर CSMA रूल्स 1944 के अंतर्गत गवर्नमेंट सर्वेंट को वहां पर भी ट्रीटमेंट मिलेगा। वैसे CGHS में वही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में भी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Okay, so Ministry of Health and Family Welfare recognize the private hospitals where the government servants can get treatment under CSMA rules 1944। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके, हम वहां पर इट मीन्स ट्रीटमेंट हमको मिलेगा और रीइंबर्स भी होगा। ओके, और वहां पर जो ट्रीटमेंट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में CGHS पैकेज रेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैकेज रेट्स में ट्रीटमेंट होगा और रीइंबर्स होगा, मगर दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 36, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हॉस्पिटल स्टे बियॉन्ड डैश वीक्स शुड बी कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग्ड स्टे अंडर CSMA रूल्स 1944। यहां पर याद रखना है, जब हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट 2 वीक्स के लिए होगा, वो एवरेज स्टे होगा, जो होगा एवरेज स्टे होगा। मगर जब 3 वीक्स से ज्यादा हो जाएगा, 21 डेज से ज्यादा हो जाएगा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में, तब उसको हम प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जो यहां पर क्वेश्चन आएगा, यहां पर जो दिया है प्रोलॉन्ग्ड स्टे, और प्रोलॉन्ग्ड स्टे के लिए मैं क्या बताया ना, बियॉन्ड 3 वीक्स, बियॉन्ड 3 वीक्स इट मीन्स मोर देन 21 डेज जब हो जाता है ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में, उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि प्रोलॉन्ग्ड स्टे। यदि बियॉन्ड 2 वीक्स होता है, बेसिकली एनी हॉस्पिटल स्टे फॉर 2 वीक्स होता है, वो एवरेज स्टे होता है। मगर जब 3 वीक्स से ज्यादा हो जाता है ट्रीटमेंट, उसको प्रोलॉन्ग्ड स्टे बोलेंगे। तो आंसर इज बिट बी। तो एवरेज स्टे आपको याद रखना है, एवरेज स्टे 2 वीक्स 14 डेज एवरेज स्टे। ठीक है, उसके ऊपर आ सकता है, एवरेज स्टे मीन्स 14 डेज, मगर जब 3 वीक्स से ज्यादा हो जाएगा वो प्रोलॉन्ग्ड स्टे हो जाएगा, राइट? तो आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 37, देयर शुड बी डैश बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट स्पेल ऑफ इलनेस फ्रॉम वन डिजीज एंड रिकरेंस ऑफ द सेम डिजीज फॉर ए सेकेंड टाइम टू जस्टिफाई ए फ्रेश क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल अटेंडेंस। यहां पर जो दिया है कि एक कॉमन डिजीज, वन स्पेल ऑफ इलनेस रिलेटेड टू वन डिजीज, सेम डिजीज के ऊपर फिर रिकरेंस ऑफ द सेम डिजीज फॉर ए सेकेंड टाइम। सेम डिजीज फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट हुआ, फिर सेम डिजीज में एक्चुअली सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहां पर कैसे क्लेम किया जाएगा मेडिकल अटेंडेंस, वो क्या गैप रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देयर शुड बी डैश बिटवीन द
closing of the first spell of illness from one disease and recurrence of the same disease for a second time to justify a fresh claim in respect of medical attendance। ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल गैप। तो यहां पर कोई 30 डेज 40 डेज 10 डेज 5 डेज ये नहीं है, वो एक रीजनेबल गैप रहेगा। ओके, फास्ट स्पेल ऑफ इलनेस क्लोज हो गया, कुछ रीजनेबल गैप के बाद सेम डिजीज के ऊपर सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो एक रीजनेबल गैप रहेगा, कोई ऐसा टाइम नहीं है, मेंशन नहीं है सीएसएमए रूल्स 1944 में। ओके भाई, सेम डिजीज के ऊपर फास्ट स्पेल ऑफ इलनेस कंप्लीट हो गया और उसके बाद एक रीजनेबल गैप रहेगा, वही आंसर रीजनेबल गैप। उसके बाद सेम डिजीज के ऊपर और एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो इस केस में दोनों में एक्चुअली जो मेडिकल क्लेम किया जाएगा उसका रिइंबर्स होगा, मगर यहां पर कोई ऐसा टाइम नहीं दिया गया है, वो रीजनेबल गैप है। आंसर इज बिट टी। चलो क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजेक्शंस एडमिनिस्टर्ड इन केसेस ऑफ ट्रीटमेंट एट द कंसल्टिंग रूम ऑफ एएमए। मैं बताया था कंसल्टिंग रूम ऑफ एएमए बेसिकली 10 डेज होता है, और आयुष डॉक्टर केस में यदि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट आयुष डॉक्टर है और उसका कंसल्टिंग रूम में 40 डेज के लिए कंसल्टेशन होगा, तो नंबर ऑफ कंसल्टेशंस बोथ केस में 4 है, बताया था। ठीक है, तो यहां पर आयुष डॉक्टर नहीं है, कॉमन दिया है कंसल्टिंग रूम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। तो इस केस में क्या होगा, 10 डेज कंसल्टेशन, बेसिकली 10 डेज कंसल्टेशन एंड विद इन 10 डेज एक्चुअली 4 टाइम्स द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट कंसल्ट विथ एएमए। और इंजेक्शंस का बात है, नॉर्मली 10 इंजेक्शंस, बट मैक्सिमम 15 इंजेक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड, मैक्सिमम 15 इंजेक्शंस विद इन 10 डेज ट्रीटमेंट इन द कंसल्टिंग रूम ऑफ ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। सो मैक्सिमम 15, नॉर्मली दिया होता तो 10 इंजेक्शंस, बट सपोज एलिमेंट जो है, जो इलनेस है, उसको देखकर इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, यदि ये होता है तो मैक्सिमम 15 इंजेक्शंस कैन बी इंजेक्टेड, और वो उसके लिए जो भी फी पेमेंट होगा वो भी रिइंबर्स होगा, पर नॉर्मली 10 इंजेक्शंस होता है। और यहाँ पर नॉर्मली आप जानते हो कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बेसिकली कंसल्टेशन फॉर 10 डेज एंड विद इन 10 डेज 4 कंसल्टेशंस, एंड आयुष डॉक्टर यदि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होता है तो वहाँ पर 40 डेज बेसिकली कंसल्टेशन पीरियड होता है, और उसमें भी नंबर ऑफ कंसल्टेशंस 4 होता है, और ईच कंसल्टेशन 10 डेज गैप इज देयर। राइट आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 39, हु इज कॉम्पिटेंट टू रिफर ए पेशेंट टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर। इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। तो बेसिकली जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए पेशेंट है, कि वो चाहता है कि जो कंडीशन है अभी उसको स्पेशलिस्ट का जरूरत है, तो वो रिफर करेगा। बेसिकली ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए पेशेंट रिफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट। और ये भी हो सकता है यदि सिवियर इलनेस कंडीशन होता है तो एएमए समन द स्पेशलिस्ट and the specialist come to the residence of the government servant and check the patient। तो यहाँ पर जो आंसर है बी डी है, विदाउट reference of the authorized medical attendant of the patient cannot consult with specialist or medical officer। right answer is bit D। चलो क्वेश्चन नंबर 40, a claimant can appeal to the central government right within 45 days from dash if the claim for medical attendance is rejected by a controlling officer। मेडिकल क्लेम आप किया मगर उसको रिजेक्ट कर दिया, कंट्रोलिंग ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट किया। जिस डेट में आपको रिजेक्शन ऑर्डर मिलेगा, ऑन व्हिच डेट द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव द रिजेक्शन ऑर्डर, उसी से 45 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करना है कि मैं मेडिकल बिल सबमिट किया था और उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया। तो आपको यहां पर याद रखना है, जो अपील होगा 45 डेज होगा, वो 45 डेज जो होगा, जो 45 डेज के अंदर होगा क्लेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन व्हिच डेट द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव द रिजेक्शन ऑर्डर। जिस डेट में वो रिजेक्शन ऑर्डर रिसीव करेगा उसी से 45 डेज के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा कि माई मेडिकल बिल रिजेक्टेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो यहां पर मिल गया। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछा है कि एक क्लेमेंट कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 45, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 45 डेज फ्रॉम डैश मींस फ्रॉम डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑर्डर। आंसर इज बिट डी। जिस डेट में वो रिजेक्शन ऑर्डर रिसीव करेगा
उसी से 45 डेज के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा कि मेरा मेडिकल बिल को रिजेक्ट कर दिया कंट्रोलिंग ऑफिसर ने, राइट। आंसर इज बी डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, इनपेशेंट ट्रीटमेंट इज परमिसिबल विदाउट कंसल्टिंग एएमए इन ए डैश। ऐसा भी है कि इनपेशेंट ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, वहां पर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट जो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर ट्रीटमेंट होगा, वहां पर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का कोई रिफरेंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटाइटल है, द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू रिसीव द ट्रीटमेंट इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्चुअली रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज किया है वो सीजीएचएस रेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट में वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसको रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीटमेंट लेता है, तो वहां पर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का कोई रिफरेंस का जरूरत नहीं है, राइट। तो वही यहां पर दे दिया, बेसिकली आंसर इज बिट सी, इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज परमिसिबल विदाउट कंसल्टिंग एएमए इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल केस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप वहां पर जाकर ट्रीटमेंट लेते हो तो वहां पर कोई जरूरत नहीं है कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का कोई रिफरेंस चाहिए। तो आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 42, हु गिव द परमिशन फॉर ट्रीटमेंट इन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अभी देखिए सभी स्टेट्स का जो मेजर सिटीज है वहां पर एम्स का हॉस्पिटल है, और आप एम्स में ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो वहां पर किसका परमिशन लेना जरूरत नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो एम्स में ट्रीटमेंट कर सकता है, और जो एम्स का रेट के हिसाब से एक्चुअली रीइंबर्स होगा। वहां पर एम्स का स्पेसिफिक रेट्स होता है, वहां पर बेसिकली जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का जो रेट है उसके हिसाब से एक्चुअली रीइंबर्स होगा। जो भी एक्सपेंडिचर होगा, आप एम्स हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो एम्स का जो रेट है उसके हिसाब से रीइंबर्स होगा। तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है, किसका परमिशन का जरूरत नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीटमेंट ले सकता है विदाउट द रिफरेंस ऑफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, यहां पर भी किसी का परमिशन लेना जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम एनीवन फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट इन एम्स। और जो एम्स का रेट है वहां पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा, एम्स का जो रेट है उसके हिसाब से होगा और वही रिइंबर्स होगा। तो यहां पर जो है आंसर बीट सी, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 43, हाउ कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रीइंबर्स ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डोनर ऑफ ए किडनी टू हिम और टू ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर द जर्नीज मेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसप्लांटेशन इफ द डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन। यदि एक प्राइवेट पर्सन अभी किडनी डोनेट करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को कि उसका फैमिली मेंबर को, तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस जो होगा वो कैसे रीइंबर्स होगा वो, मगर यहां पर याद रखना है कि द डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन। यहां पर डोनर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो प्राइवेट पर्सन है, ठीक है। वो जो भी उसके ऊपर जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, जब गवर्नमेंट सर्वेंट को वो डोनेट करेगा कि उसका फैमिली मेंबर को वो किडनी डोनेट करेगा, उसके ऊपर जो भी खर्च होगा उसका ट्रैवलिंग अलाउंस जो टीएडीए है वो कैसे रीइंबर्स होगा। तो यहां पर यदि डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन, आपको याद रखना है कि जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो किडनी रिसीव करेगा, जो बेसिकली चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो और उसका फैमिली मेंबर हो, ओके, तो उस केस में बेसिकली जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो बेसिक पे है उसके हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस बेसिकली रीइंबर्स होगा, उसके हिसाब से बेसिकली डीए को रीइंबर्स किया जाएगा। यदि डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन, आपको याद रखना है जो किडनी डोनर होगा वो प्राइवेट पर्सन होगा, उसके ऊपर जो खर्च होगा तब जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कैसे उसको रीइंबर्स करेगा ना, उसका ही बेसिक पे जो है। हम देखते हैं ना, हमको जो ट्रैवलिंग अलाउंस लेते हैं, हमारा पे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमको रोड जर्नी और रोड माइलेज और चाहे एआर की स्ट्रीम, ये सब केस में हमको मिलता है, चाहे रोड हो, चाहे एआर हो, चाहे रेल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये केस में एक्चुअली जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका पे के हिसाब से, उसका रेट्स के हिसाब से रीइंबर्स होगा टीए, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, टीए इज एडमिसिबल एट द
@ ऑफ द रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट, वही होगा, आंसर इज बिट ए होगा। टीए इज एडमिसिबल, मैं अभी बोल दिया, टीए इज एडमिसिबल @ ऑफ द रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई ऐसा हाफ ऑफ द रेट्स अदर जो है, अदर ऑप्शन ठीक नहीं है। टीए अदर ऑप्शन क्या है, टीए इज एडमिसिबल एट हाफ ऑफ द रेट्स ऑफ द रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फिक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ फिक्सेशन नहीं है कि नो टीए रीइंबर्स फॉर द डोनर ऑफ द किडनी। नहीं, डोनर ऑफ द किडनी के लिए जो भी खर्च होगा वो रीइंबर्स होगा, ठीक है, रीइंबर्स होगा, मगर जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका पे लेवल के हिसाब से रीइंबर्स होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा बिट ए होगा। मगर यहां पर याद रखना है कि डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 44, what are the charges that are reimbursed in case of admission in nursing home or clinics run AMA? ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का क्लिनिक है, जो पेशेंट का ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है उसका नर्सिंग होम क्लिनिक में यदि ट्रीटमेंट होता है वहां पर रिइंबर्स नहीं होगा। यदि इमरजेंसी केस में, हम जानते हैं कि इमरजेंसी केस में सपोज एक्सीडेंट हो गया कि ऐसा सीवियर इलनेस कंडीशन में, सपोज पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, जब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडमिट कर दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है अलाउ होगा। तो क्योंकि पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है और गवर्नमेंट सर्वेंट सीवियर इल कंडीशन में है, और चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे नर्सिंग होम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो वहां पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो रिइंबर्स करेगा, ठीक है। वहां पर एक्चुअली बेसिकली द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गिवन परमिशन फॉर रिइंबर्समेंट, जो खर्च होगा। पर यहां पर क्या है, यदि इमरजेंसी केस में जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट पेशेंट का है उसका नर्सिंग होम में क्लिनिक में यदि ट्रीटमेंट होगा कोई रिइंबर्स नहीं होगा, आपको याद रखना है। अदर क्लिनिक में और नर्सिंग होम में हो सकता है इमरजेंसी केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, मगर यदि वही इमरजेंसी केस में जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है उसका क्लिनिक है कि उसका नर्सिंग होम है उसमें ट्रीटमेंट हुआ, कोई रिइंबर्स नहीं होगा। तो यहां पर आंसर जो है बीट सी है, नो रिइंबर्समेंट अलाउड। आपको याद रखना है बेसिकली नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स रॉन ए में इन पेशेंट, उसका जो नर्सिंग होम और क्लिनिक में ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का कोई ट्रीटमेंट होगा तो वहां पर रिइंबर्स नहीं होगा, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 45, इफ यू गो टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट आज इन पेशेंट either for yourself or a family member, inform the medical officer in charge of your dash so that he may allot accommodation according to your status। मैं अभी बोल चुका हूं, चाहे द गवर्नमेंट सर्वेंट वो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा कि उसका फैमिली मेंबर जब जाएगा वो इमीडिएटली जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है उसका पे लेवल को बताएगा, उसका बेसिक पे को बताएगा, उसके हिसाब से उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा। तो यहां पर अभी आंसर मिल गया, उसका बेसिक पे इंपॉर्टेंट है, ना डेजिग्नेशन, ना उसका डिपार्टमेंट का जरूरत है, ना डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ये कोई जरूरत नहीं है, उसका बेसिक पे को वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, तो उसके हिसाब से उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा। ये क्लियरली मेंशन है सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन शुड ए बिल फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम बी टेकन अप फॉर कंडोनेशन। अभी मैं बताया था कि जो मेडिकल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, आपको अच्छे से सुनिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट विद इन 6 months बिल शुड बी सबमिटेड, ओके, बिल शुड बी सबमिटेड फॉर रिइंबर्समेंट। जिस डेट में एक्चुअली द कंसर्न जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उसी से 6 months के अंदर वो बिल सबमिट करना है। यदि वो डिले हो जाता है, 6 months से ज्यादा हो गया, 6 months के अंदर वो बिल को सबमिट नहीं कर पाया, तब वो कंडोन किया जाएगा उसको। और कौन करेंगे कंडोन? चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर सकता है और जो जॉइंट सेक्रेटरीज है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कर सकते हैं। तो जानते हैं, तो यहां पर बिल सबमिटेड आफ्टर 6 months, जो कंडोनेशन कब होगा ना, बिल सबमिटेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीट, यही ठीक है, बिल सबमिटेड आफ्टर 6 months यही कंप्लीट। अदर जो है 1 month 45 days 3 months ये नहीं है। जो आंसर है बीट है, बिल सबमिटेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। हमको 6 महीने के अंदर बिल सबमिट करना है, यदि उस वो डिले हो जाता है उसको कंडोनेशन किया जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकते हैं, आइदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसको कॉर्नर और विथ ऑथेंटिक रीजन आपको देना है कि इसी के वजह से फॉर दिस कोजेंट रीजन एक्चुअली आई कुड नॉट सबमिट माई बिल विद इन 6 months, सो यू मस्ट मेंशन द रीजन। और अदर में 1 month बिल सबमिटेड आफ्टर 45 days, बिल सबमिटेड आफ्टर 3 months, ये सब गलत है, आंसर इज बिट ए।
चलो क्वेश्चन नंबर 47, हु इज कॉम्पिटेंट टू कंडोन ए डिले इन सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम्स अंडर CSMA रूल्स। तो जो कंडोनेशन होगा, सपोज 6 मंथ्स के बाद बिल सबमिट हुआ, तो किसके पास पावर है उसको कंडोन कर सकते हैं। तो अभी मैं बताया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेक्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी करेक्ट। तो आंसर इज बीट डी, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो अथॉरिटीज है वो कंडोन कर सकते हैं, मगर जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रीजन देगा, ऑथेंटिक रीजन देगा, इसी के वजह से एक्चुअली within 6 months after completion of the treatment I could not submit my bill for reimbursement। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48, state whether TA is reimbursed for journey undertaken by the donor of a kidney if the donor is a government servant। सपोज जो किडनी डोनेट कर रहा है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो डोनर ऑफ ए किडनी है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इस केस में उसके लिए जो भी खर्च होगा, तो जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट उसके लिए टीए कैसे रिइंबर्स करेगा। तो बेसिकली यहां पर जो टीए रिइंबर्स होगा वो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये आपको याद रखना है, जो डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका पे लेवल के हिसाब से ओके ट्रैवलिंग अलाउंस को रिइंबर्स किया जाएगा। क्योंकि हमारा पे लेवल के हिसाब से हमको चाहे रोड माइलेज है, कि ट्रेन जर्नी है, कि एयर जर्नी है, कि बेसिकली जर्नी इन शिप, ये सब जो होता है बेसिकली हमारा पे लेवल के हिसाब से होता है, राइट। तो यहां पर यदि डोनर, मैं इसके पहले प्राइवेट बताया था, प्राइवेट बेसिकली इफ द डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन, मगर यहां पर दिया है कि डोनर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो टीए तो इट मींस रीइंबर्स होगा ओके बेसिकली डोनर के लिए, मगर डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे लेवल है उसके हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस को रिइंबर्स किया जाएगा। तो आप आंसर देख लीजिए, तो टीए इज एडमिसिबल, जो आंसर है बीट सी है, टीए इज एडमिसिबल एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। और यहां पर भी याद रखना है कि बेसिकली जैसे सर्जिकल केस में और आफ्टर इट मींस ऑपरेशन जो भी खर्च होगा डोनर ऑफ बेसिकली जो डोनर है उसके ऊपर जो सर्जिकल टाइम में जो भी खर्च होगा और पोस्ट ऑपरेशन में जो भी खर्च होगा वो भी रिइंबर्स होगा। और यहां पर जो दिया है दो ऑप्शन, एक प्राइवेट पर्सन बताया, डोनर इज ए प्राइवेट पर्सन, डोनर प्राइवेट पर्सन होगा तो वहां पर जो टीए रिइंबर्स होगा वो रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट का पे लेवल के हिसाब से टीए रिइंबर्स होगा। पर यदि यहां पर डोनर एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली है, डोनर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, देन जो डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे लेवल है उसके हिसाब से टीए रिइंबर्स होगा। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 49, कंसल्टेशन ऑफ AMA इज नॉट नेसेसरी इफ द ट्रीटमेंट इज फॉर ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और फीमेल फैमिली मेंबर एज इनपेशेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल। ये करेक्ट है। यदि जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और उसका कोई फीमेल फैमिली मेंबर वो रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वहां पर कोई जरूरत नहीं है, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का कंसल्टेशन जरूरत नहीं है, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का रिफरेंस जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल है वहां पर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और उसका फैमिली जो फीमेल फैमिली मेंबर है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वहां पर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का कोई कंसल्टेशन जरूरत नहीं है। ये जो है आंसर करेक्ट है, करेक्ट वन। ओके, आंसर इज बीट ए, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन, basically in case of treatment of female members receiving treatment at a recognized women's hospital, they should get the hospital bills countersigned by the dash of the hospital। यदि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और हर फीमेल फैमिली मेंबर यदि वो ट्रीटमेंट एक्चुअली दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल, तो उनका जो बिल को काउंटरसाइन कौन करेंगे। ओके, यहां पर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी female family member of the government servant treating in a recognized women's hospital, then the medical bills should be countersigned by who actually countersigned the bills। तो यहाँ पर जो है आंसर बीट डी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आंसर इज बीट डी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो ये आज का 50 क्वेश्चंस था। Okay, then in subsequent time, posturing time, again I will bring another two MCQ videos
So definitely it means in patience actually first you go through all the questions, all important questions given, and also I clarified everything properly. So within short while also it means I will bring another 2 videos related to the CSMA rules 1944. So please my friends, subscribe my channel Asit Government Rule Guru, and again namaskar to all of you and thank you all.